ومن آیاتہ اختلاف السنتکم والوانکم، یہاں پر آیا ہے، اور ایک دوسرے مقام پر ہے کہ لسان الذی یلحدون الیہ اعجمی وہذا لسان عربی مبین وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومہ۔ تو اس طریقے سے لسان کا یہاں پہ قرآن میں ذکر آیا ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں پہ ہم نے لفظ لسان ذکر کیا ہے، لیکن اس سے مراد زبان ہے جو بولی جاتی ہے، لیکن یہ لسان وہ ہے جو ہمارے منہ کے اندر ہوتی ہے۔ اس کا ذکر جو ہے قرآن پاک میں سورہ بلد کے اندر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین، کیا ہم نے انسان کے لیے دو آنکھیں نہیں بنائی؟ کیا اس کے لیے ہم نے زبان نہیں بنائی؟ کیا ہم نے اس کے لیے ہونٹ نہیں بنائے؟ تو یہاں پہ لسان بمعنی زبان ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت یہ فؤاد کا کیا معنی ہے؟ فؤاد کا معنی ہوتا ہے دل، یا پھر دل کا مخصوص حصہ، دل کا ایک خاص گوشہ اس کو کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور ناک جو ہے، جی، ناک کا تذکرہ کہاں؟ ناک کا ذکر جو ہے سورہ مائدہ کے اندر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ، یہاں پہ لفظ انف آیا ہے جس کا معنی ناک ہے۔ اسی طریقے سے سورہ قلم میں اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ پہ فرمایا سَنَسِمُهُ عَلَى الْخُرْطُومِ، یہاں پہ لفظ انف تو نہیں ہے، لیکن یہاں پر یہ ہے کہ ہم اس کی ناک کے اوپر نشان لگائیں گے، تو یہاں پر بھی ناک کا ذکر ہے۔ آنکھ کا ذکر کہاں پہ ہے؟ آنکھ کا ذکر یہی آیت قصاص جو میں نے پڑھی ہے وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ، آنکھ کا ایک معنی تو آنکھ کے لیے عین بھی آتا ہے اور آنکھ کے لیے بصر بھی آتا ہے۔ تو قرآن پاک میں بصر کئی جگہ پر ہے، جیسے اللہ فرماتا ہے ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم۔ کان کے تعلق سے قرآن میں جی، کان کا ایک آیت قصاص جو میں نے پڑھی ہے اس کے اندر ہے وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ۔ اس کے علاوہ کان کے اور بھی معنی آتے ہیں، جیسے کہ کان کے دو معنی قرآن نے بیان کیے ہیں۔ یہ لفظ، یہ جو کان ہوتا ہے اس کو بھی اذن کہتے ہیں، اور جو آدمی کان کا کچا ہوتا ہے اس کو بھی اذن کہتے ہیں۔ تو قرآن میں ایک مقام پر ہے سورہ توبہ کے اندر وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ اذن، کہ یہ کفار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دینے کے لیے کہتے ہیں کہ ہوا اذن، یہ کان کے کچے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ اُذُنُ خَيْرٍ لَكُمْ، اے نبی آپ ان سے بیان کر دے کہ یہ جو ہے اچھے کان والے ہیں، رحمت والے کان والے ہیں۔ ریڑھ کے اندر ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے، جی، ریڑھ کی ہڈی کے تعلق سے قرآن میں کیا ذکر ہے؟ ریڑھ کی ہڈی کا عربی میں صلب کہتے ہیں۔ تو صلب کا ذکر تو سورہ طارق کے اندر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یخرج من بین الصلب والترائب، یہ سینے کی ہڈیوں سے اور صلب سے مادہ خارج۔ یہ ہاتھ کی جو انگلیاں ہیں جی اس کے تعلق سے بھی تو ذکر ہوا قرآن میں۔ جی، اس کا ذکر، اس کو جو ہے بنان کہتے ہیں۔ سورہ قیامہ کے اندر اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے کہ اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن لَّن نَّجْمَعَ عِظَامَهُ بَلَىٰ قَادِرِينَ عَلَىٰ أَن نُّسَوِّيَ بَنَانَهُ، کہ انسان یہ گمان کرتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو برابر نہیں کریں گے، کیوں نہیں، ہم اس کے انگلیوں کے پوروں کو بھی درست کرنے پر قادر ہیں۔ سبحان اللہ۔ بلڈ کے تعلق، خون جو ہوتا ہے انسان کے جسم کے اندر جو دوڑتا ہے، جی، اس کے تعلق سے قرآن میں کیا ذکر ہے؟ دم، خون کو جو ہے عربی میں دم کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں خون کا ذکر کیا ہے، تو مطلقاً خون کا ذکر ہے ان آیات میں جہاں پہ خون کو کھانا حرام قرار دیا ہے۔ یہ آیتیں جو ہے کئی مقامات پر ہے، سورہ بقرہ کے اندر بھی ہے انما حرم علیکم المیتۃ والدم، یہاں پر ہے۔ اسی طریقے سے سورہ انعام میں ہے قل لا اجد فیما اوحی الی محرما علی طاعم یطعمہ الا ان یکون میتۃ او دما مسفوحا، بہتے ہوئے خون کا یہاں ذکر ہے۔ اسی طرح سورہ مائدہ میں ہے حرمت علیکم المیتۃ والدم، تو اس طرح قرآن میں خون کا ذکر ہے۔ یہ تو عام طور پہ وہ خون ہو سکتا ہے جو جانوروں کا خون ہے۔ اس کے علاوہ جو حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا واقعہ ہے، اس میں اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بنانا چاہا، فرشتوں سے ذکر کیا تو فرشتوں نے کہا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، کیا تو ایسے کو پیدا کرے گا جو زمین میں خون بہائے گا۔ یہ دانت ہے، جی، دانت کے تعلق سے بھی تو ذکر ہوگا۔ جی، دانت کا ذکر اس کے لیے میں نے وائد کری ہے، جی جی، وہ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ، یہاں پہ دانت کا ذکر ہے۔
दाढ़ी का भी जिक्र है। जी, दाढ़ी का जिक्र है सूरह ताहा के अंदर। अल्लाह ताला फरमाता है कि हजरत हारून अलैहिस्सलाम की दाढ़ी शरीफ को हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जो पकड़ा तो आपने फरमाया कि यब्न उम्मा ला ताखुज़ बिलिहियती वला बिरासी, कि आप मेरी दाढ़ी ना पकड़े। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये घुटना, इसके ताल्लुक से जिक्र होगा, ये हिस्सा है, जी, ये चक्की जो है गोल सी, ये इसको आमतौर पे जैसे कहते हैं, जैसे कोई घुटने के बल बैठता है तो उसको कहते हैं कि जसा अला रुकबती ही, वो अपने घुटने के बल बैठा। तो कुरान पाक में एक सूरा ही है जिसका नाम सूरह जासिया है। वतरा कुल्ला उम्मतिन जासिया, कुरान पाक में आया है कि सारे के सारे लोग कयामत के दिन जो है वो घुटनों के बल खुदा की बारगाह में हाजिर होंगे, घुटने टेक करके खुदा की बारगाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पेट का भी जिक्र जी, है। पेट जी, पेट का जिक्र है कुरान पाक में अल्लाह ताला ने सूरह नूर के अंदर जानवरों का जिक्र किया कि जानवर चलने के एतबार से कई तरह के हैं। कुछ पैरों के बल चलते हैं, 4 पैरों के बल, कुछ 2 पैरों के बल, कुछ पेट के बल चलते हैं। तो अल्लाह ताला फरमाता है वल्लाहु खलक़ा कुल्ला दाब्बतिन मिम्मा फमिनहुम मन यमशी अला बतनी, कोई जानवर वो है जो पेट के बल चलता है। वमिनहुम मन यमशी अला रिजलैन, कोई 2 पैरों के बल चलता है। वमिनहुम मन यमशी अला अर्बा, कोई 4 पैरों के बल चलता है। यहाँ पर जानवरों के पेट का जिक्र है। इसके अलावा अल्लाह ताला ने सूरह नहल के अंदर शहद की मक्खी का जिक्र किया तो फरमाया कि यखरुजु मिन बुतूनिहा शराबुन मुख्तलिफुन अलवानुहु, कि शहद की मक्खियों के पेट से जो है। और इंसानों के पेट का माँ का जो जिक्र है तो सूरह नज्म के अंदर है कि वज़कुरू इज़ अंतुम अजिन्नतुन फी बुतूनि उम्महातिकुम, उस वक्त को याद करो जब तुम अपनी माओं के पेटों के अंदर जो है जनीन की शक्ल में थे, बच्चे की शक्ल में जो बच्चेदानी के अंदर होते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रूह का जिक्र, जी, रूह का जिक्र, रूह का जिक्र कुरान करीम में तो कहीं मकाम पर है। यसअलूनका अनिर रूह कुल रूह मिन अम्रि रब्बी, ये पूछते हैं आपसे रूह के बारे में, तो ऐ नबी आप फरमा दीजिए कि रूह अल्लाह की तरफ से होती है और इसका इल्म तुम्हें ज्यादा नहीं दिया गया है। आपने पूछा कि नाखून का जिक्र कहा है, तो नाखून का जिक्र सूरह अनाम के अंदर है। अल्लाह ताला फरमाता है कि हमने बनु इसराइल के लिए कई चीजें हराम कर दी थी, तो फरमाया कि यहूद के लिए वालल लदीना हादू हर्रमना कुल्ल ज़ी ज़ुफ़ुर, हमने यहूद के लिए हर उस चीज को हराम कर दिया है, हर उस जानवर को हराम कर दिया जिसके अंदर नाखून हुआ करते हैं। सुभान अल्लाह। सर ये यअलमु सिर्र वल अख़फ़ा से क्या मुराद? अब मुराद तो मतलब इसका क्या माना होगा? अल्फाज के मानी बता सकता हूँ। मतलब ज़ाहिरी तौर पर तो एक ही माना समझ में आता है। इन्नहु यअलमुल जहरा वमा यख़फ़ा, या सिर और अख़फ़ा है। जी तो सिर का माना राज होता है जी और इन्नहु यअलमु सिर्र व अख़फ़ा, जैसे मिसाल के तौर पे यह आयत सूरह आला के अंदर है। जी तो सिर राज होता है, राज की जो बात होती है वो अलानिया नहीं होती, पोशीदा होती है। तो आमतौर पे लोग जो पोशीदा बात होती है उसी को राज समझते हैं जी और समझते हैं कि बस छुपी हुई बात यही है। तो अल्लाह ताला बयान फरमाता है कि तुम जिसको आखिरी दर्जे की छुपी हुई बात समझते हो वह अख़फ़ा, हम उससे भी ज्यादा छुपी हुई बात को जानते हैं। सुभान अल्लाह। इन्नहु यअलमु सिर्र व अख़फ़ा। और इसकी वजाहत और मजीद तौज़ीह भी हो सकती है कि कुरान करीम में सूरह मोहम्मद के अंदर है, अल्लाह ताला बयान फरमाता है वल्लाहु यअलमु इसरारहुम, कि अल्लाह बंदों की राजदारी को जानता है। अक्ल ये कहती है कि यहाँ पे वल्लाहु यअलमु असरारहुम होना चाहिए। असरार सिर की जमा है, अल्लाह बंदों के राजों को जानता है। तो एक राज होता है और एक राजदारी होती है जो राज की आदत होती है। तो लोग जो है अपने राजों को छुपाने की कोशिश करते हैं, तो अल्लाह ताला बयान फरमाता है कि हम तुम्हारे राजों को भी जानते हैं और ये जो राज छुपाने की आदत है, ये जो सिर की फितरत है, वो भी हमसे पोशीदा है। ये सदर यानी सीने के मुतालिक कितने अल्फाज आए? सीने के बारे में सदर ही तो आता है और सदर क्या आते हैं। सदर का जिक्र कुरान में जो है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने मुबारक के लिए कई जगह पे आया है, जैसे सूरह इंशिराह के अंदर है अलम नशरह लका सदरक, जी और इसी तरीके से फलअल्लका तारिकुम बअद मा यूहा इलैका वदाइकुम बिही सदरुक, यहाँ पर भी आया है। ये तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सीना मुबारक है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के सीने मुबारक का भी जिक्र है कि रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी। और आम इंसानों के सीने का भी जिक्र है कि वमन युरिदिल्लाहु अन यहदियहु यशरह सदरहु लिल इस्लाम, कि अल्लाह जिसको हिदायत देना चाहता है अल्लाह उसका सीना खोल देता है। सुभान अल्लाह। एक दूसरे मकाम पर है अफमन शरह अल्लाहु सदरहु लिल इस्लाम फहुव अला नूरिन मिन रब्बिही, इस तरह से। खन्नास के ताल्लुक से फरमाया।
खन्नास का माना होता है, असल खनीसा का लोगों माना तो होता है किसी चीज का पीछे हट जाना। जी जैसे जिसकी नाक चपटी होती है तो उसको खनसा कहते हैं। कुरान करीम में इसके दो मुस्तक़ात आए हैं। ये एक सूरह वन्नास के अंदर है, अल्लाह ताला बयान फरमाता है कि कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास, मलिकिन नास, इलाहिन नास, मिन शर्रिल वस्वासिल खन्नास। तो शैतान को खन्नास कहते हैं। इसलिए कहते हैं कि जब हम लाहौल पढ़ते हैं या अल्लाह का जिक्र होता है, अजान की आवाज आती है, तो शैतान दुम दबा के भाग जाता है, पीछे हट जाता है। तो इसीलिए शैतान को खन्नास कहा जाता है। और इसी तरीके से अल्लाह ताला ने सूरह तकवीर में जिक्र फरमाया है कि फला उक़सिमु बिल खुन्नसिल जवारिल कुन्नस, कसम है उन सितारों की जो आगे बढ़ते हैं, पीछे को हटते हैं, छुप जाते हैं, अलग अलग मंजिलों में दाखिल होते हैं। तो इन मकामात पे जो है खन्नास और खुन्नस का जिक्र है। नफ्स के ताल्लुक से नफ्स का माना वैसे जान होता है। तो इस हवाले से कुरान में जिक्र आया है कि नफ्स के लिए, नफ्स और ख्वाहिश नफ्स के लिए, तो ख्वाहिश नफ्स को हवा कहते हैं। हवा और अहवा कुरान में आया है, वलबित्तबअल हक़्क़ु अहवाअहुम लफसदतिस समावात, यहाँ पर है। और इसी तरीके से सूरह वन नज्म के अंदर है, अल्लाह ताला फरमाता है कि वन नज्मी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वन नज्मी इज़ा हवा मा दल्ला साहिबुकुम वमा हवा वमा यंतिकु अनिल हवा, वो अपने ख्वाहिश से कुछ नहीं कहते। इसी तरीके से अल्लाह ताला ने सूरह साद के अंदर फरमाया है कि या दाऊद इन्ना जअलनाका खलीफतन फिल अर्दि फहकुम बैनन नासि बिल हक़्क़ि वला तत्तबिअल हवा फयुदिल्लका अन सबीलिल्लाह। तो ये नफ्स है और यानी ख्वाहिश नफ्स। इसी तरह सूरह क़ाफ के अंदर अल्लाह ताला फरमाता है वलक़द खलक़नल इंसाना व नअलमु मा तुवस्विसु बिही नफ्सु, हमने इंसान को पैदा किया और हम जानते हैं कि उसका नफ्स किस चीज का वसवसा डालता है। निशानी का कुरान में कहा जिक्र है। तो ये एक सूरह अलग है, सूरह इक़रा जिसे कहते हैं। उसकी आखिरी आयत सजदा है। उससे पहले 2 मरतबा अल्लाह ताला फरमाता है कि कल्ला लइल्लम यंतही लनस्फ़अन बिन नासिया नासियतिन काज़िबा, कि अगर वो बाज नहीं आता है तो हम उसकी पेशानी पकड़ के पूछेंगे। यहाँ पर पेशानी नासिया लफ्ज़ वाहिद आया है। और क़यामत के दिन जो मुजरिमों को जहन्नम में डाला जाएगा तो उसकी जो कैफियत कुरान ने सूरह रहमान में बयान की है कि युअरफ़ुल मुजरिमूना बिसीमाहुम फयुअख़ज़ु बिन नवासी वल अक़दाम, कि मुजरिम अपने अलामतों से पहचान लिए जाएंगे तो फयुअख़ज़ु बिन नवासी, पेशानियों के बल और पैरों के बल घिसेट करके उनको डाला। जी, ये इसको हमारे इलाकाई ज़बान में किमनी कहा जाता है। इसके ताल्लुक से कुरान में जी, इसका जिक्र तो कुरान पाक की आयत वज़ू के अंदर जो सूरह माइदा के अंदर है। अल्लाह ताला फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा कुंतुम इलस्सलाति फग़सिलू वुजूहकुम व अयदियकुम इलल मराफ़िक़ वम्सहू बिरुऊसिकुम व अर्जुलकुम इलल काबैन। तो अभी आपने पूछा था काब का माना, ये काब का माना होता है टखना, और ये कोहनी जिसे आप कह रहे हैं उसका यहाँ पे तबस्सुम के बारे में, तबस्सुम का जिक्र तो कुरान पाक में सूरह नमल के अंदर अल्लाह ताला फरमाता है हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए कि फतबस्सम ज़ाहिकम मिन क़ौलिहा, कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम चूंटी की आवाज और उसकी बोली सुन करके हंस पड़े। तबस्सुम के ताल्लुक से ये हल्क जो है जी, इसका तस्करा तो कुरान में होगा। जी, इसके ताल्लुक से फरमाया जी। इसका जिक्र जो है सूरह क़यामा के अंदर है जी कि हलक का लफ्ज़ भी हो सकता है, और ये जो हलक की हड्डी जो होती है उसको तरकुआ कहते हैं, उसकी जमा तराकी आती है। तो कुरान पाक में आया है कि कल्ला इज़ा बलगति तराकिया वकील मन राक, जब रूह गले की हड्डियों को पहुंच जाएगी या गले की हड्डी को पहुंच जाएगी तो वो कहेगा कि है कोई तावीज देने वाला, दम करने वाला।